Tonight, I'm joined by Pathikrit Pain, geopolitical analyst. I'm also joined by Ravi Shankar Ravi, editor, Dainik Purvodaya. Good evening and namaskar to both of you. Pathikrit, let me start with you. What do you make of this, Pathikrit? You know, this is not the first time that China has done this. Very notoriously, it's given new names, new Chinese names to locations across a part which is ours, which is India's. Sure. First of all, this is part of Chinese psyops, and they keep on doing it. And it is also part of China's what is called the five finger of Tibet policy, and under which they have kept on needling and claiming places of Arunachal, Bhutan, Sikkim, Nepal, and Ladakh. The problem with China today is that this is something they have tried in the South China Sea also, but India is the only country which has severely resisted and completely countered the Chinese games. Today, if you go to the border areas, you have a man-for-man deployment. There's a machine-for-machine deployment, and there's a major military-level, border infrastructure which has been built up. So China knows that yes, beyond these small skirmishes which can happen at places, it is very difficult for them to do something which they could have done in any other place, or the way they tried to overwhelm Taiwan. I also want to mention it that the Chinese also know, and it has been said by somebody very senior in the government, that what may start in Ladakh may not end in Ladakh. The Chinese know the kind of deployment India today has in the Andaman Nicobar Island, whether it's the BrahMos, which was recently tested, or the harpoon-armed Jaguar fighters, or the PHI Poseidon, which can choke the Malacca Strait, which is the lifeline of Chinese trade. 90% of trade goes through that region. Yes, China is an issue. There is no denial. It is a cause of concern. It is no denial. There's no denial. But should we completely be worried and lose our sleep? Absolutely not. China might be a much bigger economy than ours, but China has far more number of adversaries than what we have. The kind of deployment that you see over there, the kind of efforts being made by government of India as part of vibrant village policy, under which in 46 blocks in 19 districts of border regions of Arunachal, Sikkim, Uttarakhand, we'll Ladakh, come to and the government Himachal, initiatives later, Pathikrit. Let me get in Ravi Shankar Ravi into this. रविशंकर जी, ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने ऐसी लिस्ट निकाली है जहां अरुणाचल में डिफरेंट लोकेशंस के चाइनीज नाम दिए गए हैं, बट क्या रिस्पांस होता है नॉर्थ ईस्ट में? दैनिक पूर्वोदय न्यूज़पेपर बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट में, क्या रिस्पांस रहता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, अरुणाचल के लोगों का, जब चाइना उनकी जगहों के नाम अपने नाम रख देती है? श्रेया, संयोग ये है कि लास्ट वीक मैं अरुणाचल प्रदेश में था और वहां के अलग अलग ट्राइब के लोगों की एक मीटिंग थी, उसमें मैं गया और मुझे याद आ रहा, जोया तसुम मोयोंग पासीघाट की एक महिला थी, जो पासीघाट से बहुत दूर नहीं है अरुणाचल का बॉर्डर, और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो तो बल्कि ये भी कह रही थी कि भारत भारत भारत। और सबसे अच्छी बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करते हैं, और जब चाइना इस तरह की हरकत करता है तो लोग हंसते हैं, क्योंकि भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, बावजूद इसके वहां के लोग पूरी तरह से अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करते हैं। उनमें कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और बल्कि वो हमारी सेना को, कई ऐसे इलाके होते हैं दूर दराज के गांव के इलाके हैं जो बिल्कुल सीमा पर सटे हुए हैं, वो हमारी सेना को मदद करते हैं, हमारी सेना को सूचना देते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज है। तो बल्कि अरुणाचल के लोग पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब से भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा है, तब से उन्हें यह विश्वास भी हो गया है कि चाइना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और यह जो उनका आत्मविश्वास है, अभी तो अरुणाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल है, चुनावी चर्चा है, बावजूद इसके उसमें ये चर्चा भी हो रही है कि चीन जिस ढंग से गतिविधियां करता रहा है, कभी नाम बदल देना, और अभी तो सेला पास के बाद लोगों का, सीमावर्ती इलाकों के लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ा है। और अभी जो कल की सूचना आई है, तवांग से बुमला के रास्ते में जो एक लेक है, वहां के बीच में और भी कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लोग सीधा
एक पुल टाइप का निर्माण हो रहा है ताकि लोग सीधा वहां तक और सीमा के करीब जा सके। तो जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, और संजोग से मुझे कई काफी बीहड़ इलाकों का दौरा करने का मौका मिला है अरुणाचल प्रदेश के, तो वहां के जो गांव ग्रामीणों का जो रुख रहा है वो भारत के प्रति रहा है, और बल्कि वो चाइना से घृणा करते हैं। यह मुझे लगता है कि यह बात भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जी। जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं, पहले तो सुविधाएं नहीं थी, लोगों को पहुंचने में एक एक सप्ताह लगते थे, लेकिन अब वहां पर सड़क, स्वास्थ्य और इस तरह की चीजें, ताकि भारत सरकार की भी कोशिश यह है कि सीमावर्ती इलाकों में जो गांव है वो गांव में ही लोग रहे, वहां से पलायन नहीं करें। तो इसीलिए अरुणाचल की चाइना की इस तरह की हरकतों का अरुणाचल के लोगों पर कोई बहुत ज्यादा कोई असर ही नहीं।